Hello, my dear student of Standard Ninth. Welcome to you once again. And today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, Movement Towards the New World. So, basically, friends, in this chapter we are going to see the world after the First World War. मीन्स हम लोग 1919 के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब हम लोग देखेंगे टिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड इवन हम लोग ये भी कवर अप करेंगे कि इन विच काइंड ऑफ सिनारियो द सिचुएशन अराइजेस ऑफ द World War II. How World War II happened? Which are the circumstances which are responsible? What are the scenarios that is built for the Second World War? What happened in the Second World War? Yes, friends, we are going to discuss what is the Second World War. Second World War में क्या क्या हुआ? What are the main incidents that we are also going to see? We are also going to see that how the United Nations formed and which are the different organs in the United Nations. So all these are the part of chapter number 3, but today in this chapter we are only concerned what exactly happened after the First World War and how the scenario are building for the First World War. Okay, so as you can see, the name of the chapter is given, and just to side of my image you will find that global trend between the two worlds. Two world means between the First World War and the Second World War. After the First World War people become economically poor. See, कोई भी कंट्री होती है जब वो वॉर से निकलती है ना तो उसके पास बिल्कुल पैसा बचता ही नहीं है. ऑल इट मनी स्पेंडिंग ऑल टूवर्ड द वॉर इटसेल्फ. एंड कंट्रीज़ के पास पैसे नहीं होते हैं उनके सिटीजन्स के लिए. ओके, द इमीडिएट गवर्नमेंट इन पावर वेर अनसक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग देयर कंडीशन. कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे? बिकॉज दे डोंट हैव एनी मनी. People lost trust in the democracy. So where democratic government are there, but people now don't trust them. Dictatorship began in some country, which become driving force for the Second World War. Let's study a series of events in this respect. Okay. So कुछ कुछ कंट्रियों में डिक्टेटरशिप शुरू हो गई. डिक्टेटरशिप इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पर यूजुअली a person taking all the charge of the country and he is going to now decide कि अब country में क्या करना है. Now fascism in Italy, then we are going to talk about Nazism in Germany, and later we are going to talk about militarism in Japan, and finally global depression. So these are the four main events which are happen after the First World War, and इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ. कैसे हुआ? Let us start from the fascism of Italy. Well, first of all let me read the whole paragraph and then I will come to the explanation part. In the First World War, Italy was on the side of the winning nation and fought for those nations. It incurred a massive expenditure of 12 billion, lost lives of 6 lakh soldiers. Yet, the other winning nation took over the choicest territory, ignoring Italy. Italy was angry and frustrated. Its nationalist feeling was hurt, for which Italians considered its government responsible and was more eager to avenge this national humiliation as soon as possible. In order to salvage Italy from such a dire situation, Benito Mussolini launched a fascist party. He adopted a bundle of sticks and an axe, a symbol of the supremacy of the Roman Emperor. As per the symbol of his party, fascism has evolved from the Italy and fas, which means absolute control, all state of the state of all things. Mussolini maxim was one party, one leader. He gave the military training to his party volunteer, wore black uniform. After coming to power, Mussolini captured Rhodes and Dodonske Island from Turkey. He also won Albania, Abyssinia, and Fuma port in 1924. After this victory, Mussolini snapped all ties with the League of Nations and joined the Rome-Berlin-Tokyo axis. Thus, Italy became responsible for the Second World War.
सो फ्रेंड्स, आपने लास्ट लाइन में क्या देखा कि इटली मतलब फिर वजह बना ना, विच आर दोज फैक्टर्स जिसने इटली को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह बनाया। वेल, इसका जो राज है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छुपा हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स कि इटली जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विनिंग नेशन की साइड था। इसने अपने 6 लाख सोल्जरों का बलिदान दिया। इतने सोल्जर्स उनके शहीद हुए। इनका $12 बिलियन, इंडिया में अगर हम लोग देखें तो $1 नाउ डेज 70-75 चल रहा है। मल्टीप्लाई, अब बिलियन विलियन आप कन्वर्ट कर लो, सो कितना खर्चा हुआ। जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई ना तो सबको अच्छी अच्छी टेरिटरीज मिली, लेकिन इटली को इग्नोर किया गया। इटली के लोगों को भी अंदर एक गुस्सा था कि हमारी गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है, हमारी गवर्नमेंट को कुछ आता जाता नहीं है, बस पैसे खर्च करना और अपने सोल्जरों की जान देना। सो फाइनली लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे और लोग जो थे वो बदला लेने के बारे में सोच रहे थे। सो इसी सिचुएशन में एक उनके लीडर आते हैं जिनका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। ओके, इफ़ यू गूगल इन सर्च आपको इजीली उनका फ़ोटो मिल जाएगा। इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था फेसिस्ट पार्टी। ठीक है, अब इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था एक बंडल ऑफ स्टिक, बहुत सारी लकड़ियाँ और साइड में एक तरफ कुल्हाड़ी रखी हुई है जिसको हम लोग एक्स कहेंगे। फेसिज्म का मतलब होता है फेसिज, मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल। मुसोलिनी का एक ही नारा था, वन पार्टी वन लीडर। एंड उसने अपने जितने भी उनके जो फॉलोअर्स थे उनको वॉलेंटियर कहते थे और उनके लिए उन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म बनवाई। ओके, एंड ये ब्लैक यूनिफॉर्म वो लोग अपने आर्मी वालों को पहनाते थे। जैसे ही पावर में आते हैं मुसोलिनी ने डिसाइड किया कि हमको अब बदला लेना है। सो व्हाट डिड डस, फर्स्ट उन्होंने 2 आइलैंड्स को कैप्चर किया। ओके, टर्की के आइलैंड थे, इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया, रोड्स एंड रोडेंस के। फिर बाद में उन्होंने अल्बानिया, एबसिनिया एंड फुमा पोर्ट्स को भी 1924 में कैप्चर कर लिया। भाई साहब, बस इतना करने के बाद उनके अंदर आ गया कॉन्फिडेंस एंड उन्होंने बोला ये लीग ऑफ नेशन सब बकवास है, इग्नोर इट, हम लोग इसको नहीं मानते। और उन्होंने सारे के सारे टाइप्स उड़ा दिए और उन्होंने एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया जिसको हम लोग कहेंगे रोम, बर्लिन, टोक्यो। यू नो इट वेरी वेल, रोम जो है वो इटली का कैपिटल है, बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल है एंड टोक्यो मीन्स जापान। तो इन्होंने ये ग्रुप फॉर्म कर लिया। एक्चुअली ये ग्रुप ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन है, जिसमें से अभी हम लोग जस्ट इटली फिनिश कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नाजिज्म इन जर्मनी। ओके, so you can able to see on your screen Nazism in Germany. So first let me read the first paragraph and then I will go for the explanation part. Okay, so let's get started. Germany had lost the first world war. हाँ, ये सबको पता है, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश देन आई विल एक्सप्लेन। It's economically ruined. Paris peace process has compelled Germany to sign the Treaty of Versailles. Germans were extremely angry with this unjust treaty. Adolf Hitler joined the National Socialist German Workers' Party in 1919. This party came to be known as the Nazi Party. The Nazi philosophy included nationalism and socialism. After the death of the German president Hindenburg, Hitler assumed the post and established a dictatorial rule. He adopted the stern, an aggressive policy and led Germany toward a narrow nationalism. Germans considered Hitler as the Führer savior. सो आप लोगों ने देखा कि कितना बिलियन खर्चा इटली का हुआ, कितने लैक ऑफ सोल्जर्स मरे, जबकि वो विनिंग नेशन में थे। तो इमेजिन करो व्हाट हैपन्स विद द जर्मनी, उनका कितना नुकसान हुआ होगा। वेल, यहाँ पे कुछ फिगर्स तो दिए नहीं है, बट आप लोग अगर गूगल करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका है, कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका है। एंड जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुई थी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको भी जर्मन लोग इससे बहुत गुस्सा थे क्योंकि उनके बहुत सारे एरियाज और उनके बहुत सारे पावर्स छीन लिए गए थे। तभी एडोल्फ हिटलर नाम का एक शख्स होता है जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन करता है। इसी पार्टी को आगे जाके हम लोग नाजी पार्टी कहेंगे। नाजी पार्टी देश के
उसका जो मेन नारा है वो नेशनलिज्म है, यानी देश को हमेशा आगे रखती है, एंड सोशलिज्म है, दैट मीन्स वो समाज के बारे में सोचने वाली एक पार्टी है जो देश को आगे रखती है, समाज के बारे में सोचती है। जैसे ही उनके जर्मन प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग की डेथ होती है, हिटलर को वहाँ का रूलर चुन लिया जाता है, एंड हिटलर जो है वो वहाँ पे एक डिक्टोरियल रूल इस्टेब्लिश करता है। फ्रेंड्स, इंडिया में जैसे नरेंद्र मोदी बहुत फेमस है ना, सेम वे हिटलर इज ऑल्सो फेमस इन हिज कलर। डोंट टेक इट नेगेटिव वे, बट हिटलर इज फॉर देम इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। उसको सेवियर मानते थे कि अगर जर्मनी को अब कुछ कोई आगे निकाल सकता है तो वो एडॉल्फ हिटलर ही है। ओके, नाउ लेट्स सी अब हिटलर जी क्या करेंगे। नाजी सोल्जर वॉर ब्लू यूनिफॉर्म, ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म एंड स्टक अप रेड स्ट्रिप, जहाँ पर अच्छा ब्लू यूनिफॉर्म में जैसे शर्ट पहनते होंगे, एंड स्टक अ रेड स्ट्रिप ऑन द शोल्डर एंड वॉर द सिंबल ऑफ द स्वास्तिक। जैसे हम लोग वो स्वास्तिक बनाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में इस तरह के ये स्वास्तिक बनाते हैं। ओके, ये सेम स्वास्तिक जो था ये नाजी पार्टी का लोगो था, और ये लोग यहाँ पर भी स्वास्तिक का निशान लगाते थे। ओके, सो नाजी सोल्जर वॉर ब्लू यूनिफॉर्म एंड स्टक द रेड स्ट्रिप ऑन द शोल्डर एंड वॉर अ सिंबल ऑफ द स्वास्तिका। Let me finish the paragraph and then I will explain. Okay, Hitler authoritarian and militarism nature become obvious after becoming to power. His aim was to emerge the Germany as a major power. In the name of purification of German race, his policy were targeted the exterminating Jews, gypsum and mental challenge people. At the end of the Second World War, innumerable European Jews lost lives, which is known as the Holocaust, genocide. Hitler's expansion of military action against the neighbor country and policy of terminating certain groups led to the Second World War and become an important reason for the same. So, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नाजी सोल्जर ब्लू यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्वस्तिक का निशान होता है, तो हिटलर ने जो है वो अथॉरिटियल नेचर का था, मीन्स अपना हक जिताने वाला, और वो मिलिट्री से बिलोंग करता है तो स्ट्रिक्टनेस इज ऑलरेडी देयर इन हिज नेचर। उसका एक ही मकसद था, जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाना। उन्होंने अपने जर्मन देश को छोड़ के जूस कम्युनिटी जो यहूदी हैं, स्पेशली आज जो इसराइल में रहते हैं, उन लोगों को उन्होंने टारगेट किया। अपने जर्मन देश को आगे लाने के लिए और जूस को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने लाखों लाखों जूस की हत्या की। जब एक साथ बहुत ज़्यादा मास लोगों को मारा जाता है तो उसको हम लोग जेनोसाइड या होलोकास्ट कहते हैं। ओके, सो हिटलर इतना क्रूर राजा था, एंड से फॉर एग्जांपल अपने कंट्री के लोगों को मारना इट्स अ नॉट गुड थिंग। हिटलर एक्सपांशन मिलिट्री एक्शन एंड उसने अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ को टारगेट करना स्टार्ट किया, उनके पावर एनालिसिस करना स्टार्ट किया एंड ऑल दैट। ठीक है, सो यही सब कारण बने, सॉरी फॉर दैट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। ओके, नाउ इटली वी सीन, जर्मनी वी सीन, नाउ वी आर गोइंग फॉर द militarism in Japan. And friends, remember, Japan is most cruelest among them. Now what happened? Militarism in Japan. First of all, let me go through all the lines and then I will explain. According to the Treaty of Versailles 1919, Japan got benefited the provinces of China, England, France, distributed many regions of Germany between them. Japan quite displeased with this. In the 1921 and 22 Washington meet, Japan had to agree to have only 35% of English and American naval force. Japan also had to vacate the island of Sakhalin and Siberia. The Japanese youth was angry at this. During this time, there was an election in Japan and the party supporting the militarism got the majority. The military nationalists of the Japan adopted the policy of expansion. Japan did not get a permanent place in the League of Nations. The Western country could not stop the imperialist activity
of Japan. And Japan captured Manchuria and established Manchukuo government in 1932. Also, it acquired Korea, Mongolia, Shontang, and some provinces of the China. So talking about China, not China, जापान 1919 के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्सल साइन हुई ना, तो एक्चुअली जापान भी विनिंग नेशन में था और उन्होंने बहुत सारे एरिया को कैप्चर किया था. लेकिन एज यू नो कि इंग्लैंड और फ्रांस को ज़्यादा हिस्सा मिला और जापान को अगेन इग्नोर किया गया. सो जापान इससे मतलब डिसप्लीज हुआ. फिर अमेरिकन और इंग्लिश नेवल फोर्स को उनको कुछ 35% ही मिला. उनको उन्होंने जो सिकलाइन एंड साइबेरियन आइलैंड जीते थे वो भी इसको वापस देने पड़े. मीनवाइल गुस्सा तो था ही जापान की पब्लिक में, एंड वहाँ पे इलेक्शन होते हैं और जो पार्टी मिलिट्री को सपोर्ट कर रही थी वो पावर में आती है. एंड जैसे ही वो पावर में आती है उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि अब हम लोग रुकेंगे नहीं और अब हम लोग एक्सपांसन की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं. एंड जापान एक और चीज़ से गुस्सा था कि उसको लीग ऑफ नेशन में कोई जगह नहीं मिली. फाइनली जापान ने अपनी विक्टोरियस मूवमेंट स्टार्ट की. जापान ने पहले मंचूरिया एंड वहाँ पे मंचूका गवर्नमेंट फॉर्म की. फिर उन लोगों ने कोरिया, मंगोलिया और कुछ कुछ चाइना के पार्ट्स को अगेन रिकैप्चर करना स्टार्ट किया. सो यू कैन सी जापान भी बहुत ही एग्रेसिवली जा रहा है. ओके, इट इम्प्रूव द रिलेशन विद जर्मनी एंड इटली. सो ये उसके कुछ दोस्त थे. And lose its all string of imperialism. After the Emperor Meiji and Emperor Hirohito in 1936, he also encouraged this activity of Japan, and thus Japan snapped all its ties with the League of Nations. And जैसे ही फिर उनके जो नए लीडर आते हैं मेजी एंड हिरोहिटो, ये भी अपने सारे पावर्स अपने हटा लेते हैं लीग ऑफ नेशन से और अपना विनिंग मोमेंट कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो दिस आर द रीजन. देयर इज वन मोर रीजन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट ग्लोबल डिप्रेशन. ग्लोबल डिप्रेशन किसे कहेंगे? सी, मान लो गवर्नमेंट के पास सारा पैसा खत्म हो गया, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं है. अब पब्लिक क्या करेगी? उस टाइम पे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उठाने की सोचेगी, क्योंकि पैसा किसी के पास नहीं और पैसे खर्च भी करने हैं ज़िंदगी जीने के लिए. सो अब गवर्नमेंट का जो सेविंग थी वो भी अब खाली होने लग गई है. मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को लोगों को जॉब से निकालना पड़ रहा है, कंपनियां टैक्सेस दे नहीं रहे, तो गवर्नमेंट को ऐसे ही बैंड बची पड़ी है. और जब ऐसा बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ होता है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लोबल डिप्रेशन, जो चला था 1929 से 1932 में. The head of the most of the European nation had believed at the end of the First World War, even the post-war problems of the world will not come to an end. But this proved wrong. Suddenly, the large number of shares were begun to be sold at the Wall Street market, causing the stock market crumble. This was called the Wall Street crisis by the critics on 24th October 1929. This crisis shook the whole world and shattered the economic condition of the nation, and giving birth to the Great Global Depression. Most of the nations of the world were affected at this. Even the superpower like the Great Britain had sacrificed the policy of keeping gold reserve against its currency pound, and this affected the other nations and the world international trade and industry. Prosperous nations like America had to impose the strict measures. Global trade was reduced to half, and the World War II started getting an outline. So friends, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि सारे नेशन क्या सोच रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर उनकी ये बात गलत थी. अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है, जिसको हम लोग वॉल स्ट्रीट कहते हैं, उसे एक वॉल स्ट्रीट क्राइसिस का नाम दिया गया क्रिटिक्स के द्वारा. ये कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1929 को. सारे देशों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही डाउन जाने लगी थी. इवन जो अमेरिका था उस टाइम पे, जो सुपर पावर हुआ करता था, ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम लोग कहते हैं, इवन उसको भी अपना गोल्ड रिजर्व सेक्रीफाइस करना पड़ा. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड लगभग आधा हो गया था, एंड अमेरिका को भी बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़े अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए. ओके, एंड कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रही हैं. फ्रेंड्स, नाउ द वर्ल्ड वॉर 2 1939 एंड 1945. तो वर्ल्ड वॉर के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? मेन चीज़ें तो हमने देख ली है. नाउ वी आर गोइंग टू सी फैक्टर्स. वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, डेट ऑल वी आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द
in our next session. Okay, till then, you guys are amazing. Keep learning, keep watching, and bye everyone.